तो नाज़रीन, आपका होस्ट मियां रियाज M42 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला सुल्तान पार्क में। नाज़रीन, एक हफ़्ता पहले यहाँ एक मासूम 11 साला बच्चे के साथ बदफेली का वाक़या हुआ था। और वो कैसे हुआ, करने वाला कौन है और उनके घर वालों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला, पुलिस इस बारे में क्या कर रही है। तो आइए घर वालों से हक़ाइक़ जानते हैं कि ये माजरा सारा है क्या। तो आइए मेरे साथ। हम उस घर में आ चुके हैं और इस बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। ये 11 साला ये बच्चा है, उसके वालिदैन भी मेरे साथ हैं। इनके साथ ये वक़्वा कैसे हुआ, करने वाला कौन शख्स है, उसका रिकॉर्ड क्या है मोहल्ले में और पुलिस का तामन इनके साथ कैसा रहा है। तो इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गौस सर। तो सब क्या माजरा हुआ आपके बच्चे के साथ? सर ये मेरे मोहम्मद रमज़ान है थे, उन्हें बेली बनाई इसे टाइप की इसे तरह के मामला तो अगे भी पेश आए ने थे। इस बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? रमज़ान रमज़ान पुला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਉਹਨੇ ਵੇਲੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰ। यानी कि महल्ले तो बहुत ज़्यादा पहले भी ये शिकायत आंदियाँ रही ने, लेकिन इस दफ़ा तो हद तो गुजर गया। कोई ऐसी शिकायत बताएं आप हमारे नाजरीन को, कौन सी, क्या मोहल्ले से आपने क्या सुना उसके बारे में? सुनिया कि सर ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸ਼ਾਈਕ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬਦਫੇਲੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। लेकिन मैं खड़ा होना मजबूरी हो गई सी, इसलिए कि कोई भी बंदा इनके खिलाफ खड़ा नहीं सी हो रहा और मैं मजबूरन खड़ा होना पाया कि अज मेरे बच्चे नाल होया, कल नूं किसी होर दे बच्चे नाल हो जाएगा। की समझे? तो लिहाजा इसलिए मैं मजबूरन खड़ा होना पाया और मैं इंशाल्लाह खलोवांगा। और तुहाडे नाल इत्थों जिहड़ी मौजूदा पुलिस है इत्थों दी इलाके दी, ਉਹਦਾ ਤਾਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कैसा है? क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ DPO ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ SHO ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? नहीं सर, कोई बंदा नहीं मेरे तक पहुंचा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? जी सर, ये सारा कुछ क्लियर हो गया और उसके बाद एडा वड्डा वाकयात होने के बावजूद मेरे तक कोई नहीं पहुंचा। ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? जी सर, FIR कटवा दी। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? नहीं सर, उन्हें कुछ जमानत करवाई अपनी ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, मैं फिर रहा गलियां दे विच। नाज़रीन, ये अलमिया कैसा है ये देखिएगा ज़रा कि वो दरिंदा शख्स, वो जालिम इंसान के उसके घर में भी उसके बच्चे होंगे, बेटियां भी होंगे, ऐसे इस उम्र के बेटे भी होंगे और उसने इसके साथ बदफेली की है। और सवालिया निशान उठता है मेरे इस कानून पे, इस पुलिस पे और कानून नाफज करने वाले अदारों पे। कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को अबूरी ज़मानत पे छोड़ देते हैं कि जाए किसी और बच्चे की इज़्ज़त ख़राब करें, किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब करें। वो जब इस बच्चे के साथ बदफेली कर लेता है तो उसके बाद ये FIR उसके नाम करवाते हैं, वो पकड़ा नहीं जाता। ऐसे दरिंदों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और इनके लिए कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये किसी और के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना कर सकें और लोगों के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे हमारे बच्चे महफूज रह सकें ऐसे दरिंदों के हवस से। तो और उसके बाद किसी ने आपसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की है? नहीं सर, किसी ने उससे रब्ता नहीं किया।
ये नाज़रीन ये देखिएगा कि जो ये गरीब लोग हैं सभी पहले भी गरीब दबाए गए उनके अपने पैसे के बलबूते पे। इनका कहना है ये अपने मौक़िफ़ में कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रह चुका है वो शख्स, ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है, काफ़ी बच्चों की इज़्ज़त ख़राब कर चुका है। लेकिन पहले ही अगर उसे लगाम डाल दी जाती, पहले ही उसे पकड़ा जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये गौस साहब का जो बेटा है, ये 11 साला मासूम बच्चा बच जाता उसकी हवस से। इसके साथ ये ऐसा जुल्म नहीं होता। हमारा कानून कब होश में आएगा, कब वो समझेगा कि हमारी जो जान और माल की जो ज़िम्मेदारी उन पे होती है, उनकी हमारी हिफाजत की, वो कब इस बात को समझ पाएँगे कि जो अवाम है, इनकी जान और माल की और इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आती है और ऐसे लोगों को कब निशाने इबरत बनाया जाएगा। नाज़रीन ये बच्चा जो हमारे साथ है, इससे भी बात करते हैं कि इसके साथ ये सारा वक़ूआ किस तरह पेश आया, वो वहाँ पे क्या करने गया था और उसने इसको कैसे वर्गलाया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सफियान। बेटा क्या सारा मामला आपके साथ हुआ, आप बताएं। मैं अपने दोस्त के साथ लाइनों पे खेल रहा था। हाँ। इसने मुझे वावे दी, बाबे रमजान ने, मैंने बात नहीं सुनी। हाँ। इसने एक लड़का भेजा, वो मुझे पकड़ के गया मार के। तो उसके बाद ही मुझे अंदर छोड़ के, और उसने मारा क्यों? बाहर ही मारा, किसी ने मारते हुए देखा नहीं? देखा था। हाँ। वो उसने मुझे मारा और कह रहा था मेरी तुमने बात क्यों नहीं सुनी है। अच्छा। फिर वो अंदर ले गया, उसने मारा मुझे, फिर मेरे साथ जबरदस्ती की, कपड़े उतारे मेरे। हाँ। फिर उसने गंदा काम किया मेरे साथ। फिर उसने थप्पड़ मार, कहता था किसी को मत बताना। अच्छा। फिर उसने बाहर फेंक दिया। फिर वो बाहर आए थे आदमी, उन्होंने पूछा था, उन्होंने बोला अंदर कौन है, तो वो कह रहे थे मेरे बीवी बच्चे आए हैं अंदर। बेटा जब वो आपके साथ गलत काम कर रहा था, आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं कि कोई मोहल्लेदार सुन ले? चलाया था। हाँ, तो फिर क्या किया उसने? फिर उसने थप्पड़ मारता था, कहता चुप करो चुप करो। अच्छा, तो क्या तशद्दुद भी किया, मारा पीटा, गला दबाने की कोशिश भी की उसने? जी। फिर जब गलत मारने लगा था और, तो वो बाहर से दरवाजा खड़क गया था। क्या उसने कोई पैसे वगैरह का लालच दिया था? किस तरह वर्गलाया था? कुछ भी नहीं था दिया, अंदर ले गया था वो लड़का पकड़ के। हाँ। फिर उसने गंदा काम किया और बाहर निकाल दिया था, मुझे कहता किसी को मत बताना। और क्या क्या कहता था आपको? क्या क्या आपने तो सुना था, सारा आपके साथ वकूआ हुआ है बेटा? जी, मुझे कहता था तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तकलीफ से, कर्ब से क्या आप रोए चिल्लाए, बाहर आके लोगों को बताया किसने मेरे साथ क्या जुल्म किया है? नहीं बताया था। किस सबसे पहले आपने किसको बताया था? सबसे पहले वो आदमी आए थे, उनको बताया था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? बताएं बेटा, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं है बेटा, बेफिक्र हो जाए, बताएं आप। उसके बाद वो आदमी आए थे। हाँ। उन्होंने पूछा था, उनको बताया था। ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए? उसको मार देना चाहिए। ये देखिए मासूम बच्चा है, जिस करब से, जिस तकलीफ से ये गुजरा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये कह रहा है कि ऐसे शख्स को मार देना चाहिए ताकि जो मेरे जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उसकी हवस से बच सकें। तो बच्चे की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इस वाकया में ये जितना जो दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया हुआ है, ऐसे वाकये होने नहीं चाहिए हमारे इस माशरे में, क्योंकि जब तक हमारा कानून की बालातरी नहीं होगी, कानून ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं देगा, ऐसे वाक़े तो रूनुमा होते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी इस बारे में, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई मैं इतना ही कहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए, बस उसको छोड़ना नहीं है। जब पता चलता है आपको कि आपके बेटे के साथ ये जुल्म किया गया, फिर आपके दिल पे क्या गुजरी, आप क्या सोच आई आपके माइंड में? कुछ भी नहीं, बस यही दिल चाह रहा था कि उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए बस। नाज़रीन शायद मैं देख रहा हूँ कि आप भी देख सकें, इस माँ के आंसू देखें कि एक माँ ही जानती है कि जिसके बेटे के साथ ऐसा जुल्म किया जाए, उस माँ के, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। इनको भी डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसों का लालच दिया जाएगा और फिर वो शिकारी जो है एक नए शिकार में निकलेगा, नए शिकार के बारे में सोचेगा, उसने मैंने क्या करना है। ये उसकी जो हवस का जो ये जो होता रहा है सारा कुछ मामला, ये आज ही नहीं, ये पहला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी वो वाक़ये कर चुका है, जो जिस घर में वो रहता है, मोहल्ले से मुझे पता चला है। नाज़रीन मैं मोहल्लेदारों से भी बात करूँगा, जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह है, जिसने देखा था मामला कि बच्चे को अंदर लेके गए हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, उससे भी बात करेंगे। जो सारा जो सच्चाई है इस मामले की, वो आपके सामने लेके आएँगे। और अब आपको लोगों को इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ की अपील जो है वो किससे करना चाहेंगे?
हम सबसे ही करने चाहेंगे, सबके बच्चे साझे होते हैं। ये हमारे बच्चे के साथ हुआ, आइंदा किसी बच्चे के साथ ना हो। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक माँ के आंसुओं का दर्द जो है वो पहचानें, इस माँ के दर्द को समझें, इस बाप के दर्द को समझें, इस बच्चे के दर्द को समझें कि वो इस दरिंदे को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। डीपीओ शेखपुरा एहसन सैफुल्ला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कोई आप ऐसा एक्शन लें कि ऐसे जो दरिंदे ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचें। और जो हमारे मुतलका डीएसपी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कहाँ सोए हैं आप, कोई तो ऐसा काम कर जाएं कि जब आप यहाँ से जाएं तो लोग आपको याद करें कि वो आपने ऐसा कारनामा किया था, कि बजाय ऐसे गरीबों को दबाने के इनका साथ दें, इनका हौसला बने, इनको जो है कि वो इंसाफ दिलाएं। और जो मुतलका SHO साहब हैं, उमर शराज गुम्मन साहब हैं, इनको किसी टास्क पे भेजा गया है कि इसको भी अपने टास्क में शामिल करें और इस दरिंदे को इबरतनाक सज़ा दें कि ताकि ये ऐसा काम और ऐसा कारनामा ना कर सके। और जो नाज़रीन, मैं आप महल्लादारों से भी बात करता हूँ, जो चश्मदीद गवाह है उनसे भी बात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्बा जी, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? ਇੱਥੇ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 27-28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਇਸ ਵਾक़ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ आप समझ तो गए हैं कि जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ, बाकी सारी गल तुसी समझ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, ठीक है। वो बच्चा हमारा हमसाया है, ठीक है। तकरीबन अरसा 5-6 साल से हमारे साथ रह रहा है बच्चा। आप कब से रह रहे हैं इस तो मतलब? मैं तकरीबन 15 साल से ये दुकान कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे इलाके में बहुत ही घिनौना काम हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा इस आदमी को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, दोबारा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वो आदमी करैक्टर वाइज कैसा है? आप 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। करैक्टर वाइज काफ़ी लो है उसका, ठीक है। वो पहले भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रह चुका है? बहुत ज़्यादा। इससे पहले थोड़ी देर पहले तकरीबन 2 से 4 साल इसके डेरे पे कत्ल हो चुका था। एक बच्चा कत्ल हुआ था? एक बच्चा जो नौजवान बच्चा है, नौजवान कत्ल हो। नहीं, वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, उस बंदे के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने वो क्या आप उसके मतलब जानते हैं? वो कैसा बंदा है? उसका मोहल्ले में रहन सहन कैसा है? किस टाइप का बंदा है वो? उसका किरदार अच्छा नहीं है, तो इनको हमारी तो कोशिश, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हैं सर, उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। गलत हुआ जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। जो बंदा है रमज़ान बुल्ला जो है, वो पहले भी उसकी आपने कोई ऐसी शिकायत वगैरह या ऐसे काम सुने हुए हैं कि वो? जी सुना है, कई सुना, लेकिन कन्फर्म हमें नहीं है, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें कड़ी से। कैसा रहन सहन है मोहल्ले में? किस तरह का बंदा है वो? किस टाइप का बंदा है? इसी टाइप का बंदा है, वो सारा दिन बाइक पे घूमता है, ठीक है ना। उनके काफ़ी ऐसे काम। नहीं, ये बहुत बुरा हुआ है। अल्लाह ना करे कल नू किसी और का, और इसके बारे में आप लें, स्टैंड लें पूरा। सही है जी। वो क्या पहले भी कोई ऐसे मामलात में वो मुलव्वस रह चुका है? हाँ जी, बताएं। वाकया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। पहले किसी ने पूछा क्यों नहीं, उनको नकेल क्यों नहीं डालेगी? बस ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, जरा पुलिस ਨੂੰ खरीद लेंदा। बहुत ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी एज देखें, वो बच्चे का देखें, एज कितनी है, 12 साल का बच्चा है तकरीबन, वो बूढ़ा आदमी है, लेकिन इस तरह का ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। वो गरीब आदमी है, वो रेंट पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादती की इसने। ये हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं, ये चरवाहे हैं, यहाँ पे भैंसें चराते हैं। जब ये वकूआ बच्चे के साथ होता है, ये यहाँ पर मौजूद थे, ये देख रहे थे क्या मामला है। वो अंदर लेके बच्चे को जब जाता है, जब बाहर भी निकालता है। बाकी की जो स्टोरी है ये भाई बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? तनवीर। भाई, क्या वकूआ जो हुआ बच्चे के साथ बदफेली वाला, आप उस बारे में क्या जानते हैं? भाजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, जो भी ਹੋਇਆ, जिस तरह भी ਜ਼ਿਆदती होई ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सही है। हाँ जी। और क्या माजरा क्या होगा? थोड़ी सी तफसील बताइए हमारे नाज़रीन को। मसलन मामला क्या, मतलब थोड़ी सी तफसील के, जैसे आपको कैसे पता चला कि वो बदफेली या ज्यादती हुई है, किस तरह?
ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी ਹੋਣੀ। बिल्कुल वैसे ही हुई है, लेकिन आपको पता कैसे किस तरह चला कि वो वाकई ज्यादती हुई है? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ हाँ। ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, जी जी ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, सही है। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ? ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। हाँ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। जी मतलब आप अपने नज़र रखिए कि देखते हैं कि फैमिली आई है कि नहीं आई है। फिर जब बच्चे को बाहर निकाला उसने, फिर आप जो दोस्त खड़े थे उनके दरमियान मुकालमा क्या हुआ? आपने क्या बातें हुई आपके दरमियान? ਕੋਈ ਬਾतें नहीं हुई, बस ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ नहीं ਸੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। अच्छा, वो जो बंदा है जिसने ये ज्यादती की है बच्चे के साथ, उसका करैक्टर कैसा है मोहल्ले में? पहले भी ऐसे काम वो कर चुका है क्या? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ऐसा ही है वो भी। ऐसा। नाज़रीन, ये वो डेरा है, वो घर है जहाँ पे उस मासूम 11 साल बच्चे के साथ जो ज्यादती की गई, और आप पीछे देख सकते हैं कि वो नंबर प्लेट लगी हुई है, मोहम्मद रमज़ान वल्द हयात मोहम्मद नंबरदार है। वो इसी नंबरदारी का फ़ायदा उठाता है, यहाँ पे बच्चों को घेर के लाता है, छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को। और ये उसने समझ लें कि जैसे गरीबों का फार्म हाउस, जैसे बड़े लोगों के फार्म हाउस होते हैं, वो उसका ये नंबरदार का फार्म हाउस है, जहाँ पे वो गलत काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये ताला भी इस घर को लगा हुआ है। जब भी उसने कोई ऐसा काम करना होता है, वो चाबी लेके आता है, यहाँ पे किसी को वर्गला के लाता है और वो इसी ताक में रहता है। वो लोग मोहल्लेदारों के भी आपने मौक़िफ़ सुना है, उस बच्चे का भी मौक़िफ़ सुना, उसके वालिदैन का मौक़िफ़ भी सुना, जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह थे, जिन लोगों ने ये वक़ूआ देखा, कि पूछा भी उनसे आके कि ये क्या हो रहा है, तो उस बंदे ने कहा कि यहाँ पे मेरी फैमिली आई हुई है। लेकिन जब उसने बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा रो रहा था, चिल्ला रहा था, फिर सब मोहल्लादारों को पता चला। ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, ज़ालिम इंसान है, ये बाहर दिन दनाता फिर रहा है, कोई पूछने वाला इसे नहीं है, तो इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ये मोहल्ले में अपने गनमैन को बॉडीगार्ड लेके उन घर वालों के सामने जब गुजरता है वहाँ से, कि वो बताता है कि ये देखो मैं इतना पावरफुल हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, आप लोग मेरा क्या बिगाड़ोगे? तो तब वो उन घर वालों का हौसला टूट जाता है। उस माँ के जो आंसू होते हैं वो खून में बदल जाते हैं, वो माँ खून के आंसू रोती है। इस जालिम दरिंदा सिफ्त इंसान को सज़ा कौन देगा? उसको पकड़ के सलाखों के पीछे कौन डालेगा? ये मेरा काम नहीं है, ये मोहल्लादारों का काम नहीं है। मोहल्लादारों ने अपना काम कर दिया, जो घर वाले हैं, जो बच्चे के वालिदैन हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया, जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने अपना काम कर दिया। अब कानून को अपना काम करना होगा, ताकि कानून का बोलबाला हो, कानून की बालादरी हो, और हमें कानून पे इत्मीनान हो जाए कि कोई अगर जालिम को दरिंदा सिफ्त इंसान ऐसा काम करेगा तो वो ज़रूर सलाखों के पीछे होगा, या जो सज़ा है उसे दी जाएगी। वो ऐसे शख्स के लिए सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि जहाँ भी इतने महल्ले के जो बच्चे हैं, वो मैंने जब यहाँ पे देखे डरे हुए और सहमे हुए हैं, ताकि ऐसे दरिंदे का कोई वो भी शिकार ना हो जाएं। जब तक इस दरिंदे को सज़ा नहीं होगी, दूसरे दरिंदे उससे देख के इबरत नहीं पकड़ेंगे। वो उनके लिए वो अलमिया होगा कि ऐसे शख्स को सज़ा नहीं मिली, हमारा कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। इसी के साथ अपने उस्मिया रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।